प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। इस सुबह का आराधना में आप सभी को स्वागत है। प्रभु ने हम सभी को पूरा सप्ताह संभाल के रखा उसका आराधना करने के लिए। हमारे बीच में मार्क कैलवेट है, वो हमें आज का आराधना में लेके जाए। Good morning. It's great to be here again on the last Sunday of the month. In fact, it's the last day of the month. Let's come together in God's presence and worship Him. Let's bless His name. धन्य तेरा नाम बहुतायकीय में परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुछ मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अनपढ़ में। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल का है। धन्य तेरा नाम, तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल का है। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। And as we go further in worship, let's remember 2 Corinthians chapter 12 verse 9, where it says, His grace is made perfect in our weakness. In fact, His grace is enough for us. Great is your faithfulness, O God. You are still with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace
Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. आज का वचन में जाने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आप सोचते होंगे कि परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप ये भी सोचते होंगे कि कुछ काम करने के पहले, क्योंकि कुछ भी काम करने के पहले आपका रुकावटें आते हैं। आप ये भी सोचते होंगे आप बहुत कमज़ोर हैं। पर भाइयों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप गलत हैं। आज का वचन ही सिखाएगा आपको किस तरह प्रभु ने आप सभी को इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच में है जोनाथन, जो वचन में अगुवाई करेंगे और हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे सैम कैल्विन। Good morning to all of you once again. आप सभी को गुड मॉर्निंग। And before we begin, I want to wish all of you a very happy Pentecost Sunday to all of you. और शुरुआत करने के पहले आप सबको शुभ पेंटिकॉस्ट संडे में मुबारकबाद देना चाहता हूँ। Many are celebrating the Feast of Pentecost, and I बहुत wish you all who are joining with us. बहुत सारे लोग इस पेंटिकॉस्ट के पर्व को मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलके इस पर्व का आनंद लें। So we will look into God's word, and today's topic is very important, and I believe God will speak to all of you through today's word. और हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आज का वचन बहुत ही बहुमूल्य है और हम चाहते हैं कि आप सब ध्यान से इसे सुने। So before we begin, we will have a short prayer. आरंभ करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। God, we thank you how good you are and how powerful you are, Lord. How marvelous are your deeds in the midst of your people. And we believe today you're going to speak to all of us through your word. You're going to reveal us, Lord, the depths and revelation of your word and that we find. Lord, help us and guide us through your spirit. In Jesus' name we pray. Amen. We know that in Acts 2, at the Feast of Pentecost, the Holy Spirit came and filled all the people. हम जानते हैं प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय में कि पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आके सारे लोगों को भर दिया। It says it filled everybody. वहाँ ऐसा लिखा है कि सारे लोगों को भर दिया। So today's topic is that only which I'm going to speak. It is void but not unemployed. और आज का जो विषय है वो है शून्य है मगर बेरोजगार नहीं है। I want you to remember this thing, and again I'm saying this. You may be void in some area but you're not unemployed. मैं चाहता हूँ इससे आप ध्यान रखें। हो सकता है कोई जगह में आप शून्य हो मगर बेरोजगार नहीं हो आप। What do I mean by this? इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ? Genesis 1:2 says the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय का 2 पद में लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर
अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Verse 3 says, And God said, Let there be light, and there was light. और तीसरा पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर कहता है उजियाला हो तो उजियाला हो गया। When the earth was void and it was without form, God used it as a platform and He filled the void. जब यह पृथ्वी बिल्कुल सुनसान और शून्य पड़ा था, परमेश्वर वहाँ एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और उस शून्य स्थान को भर देता है। Wherever there is a void, God uses it to manifest Himself. जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई शून्य स्थान है, परमेश्वर उस स्थान को लेकर अपने आप को प्रकट करता है। Now, the word in the Bible for fill or filling is male. अब बाइबल में भरने का जो मतलब है उसे माले कहते हैं। The word comes from malal, which means to speak a word. और ये माले शब्द मलाल शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है कि कोई शब्द कहना। When there is a void in some place or it is empty, God speaks and His word fills that place. जब कोई स्थान शून्य पड़ा रहता है, परमेश्वर बात करता है और उस स्थान को भर देता है। The earth was void and God spoke and He recreated it, everything. पृथ्वी बिल्कुल शून्य पड़ा था, परमेश्वर ने बात किया और फिर सारे चीजों को उत्पन्न किया। That is why in the word for world in English, we find the word for word. और इसलिए अंग्रेजी में वर्ल्ड में वर्ड का शब्द जो है एक पाया जाता है, Because the world was created by the word. क्योंकि ये सारा संसार जो है एक शब्द के अनुसार उत्पन्न हुआ। In Luke 5:5 we see Simon, he did not find fish, so it says, Master, we have toiled all the night and have caught nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. और उसके बाद हम देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 5 पद में जो लिखा है, शिमोन ने उससे उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Notice, at night it was dark and the net was empty. There was no fish. यहाँ ध्यान करिए, वो रात के समय था और वो जाल जो है बिल्कुल खाली पड़ा था। Just like in the book of Genesis, it was void, there was nothing, and there was darkness. ठीक उसी प्रकार से उत्पत्ति का किताब में भी ऐसा ही लिखा है कि बिल्कुल शून्य पड़ा था और कुछ नहीं था पृथ्वी में। But when morning came, notice this word, it says, At thy word I will let down the net. मगर देखिए, ये 5 पद का आखिरी लाइन अगर पढ़े तो वहाँ लिखा है, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। यह सुबह को उसने कहा। That is why Simon also means to hear and obey. इसलिए सैमोन का मतलब भी यह होता है सुनना और आज्ञा पालन करना। So when Jesus spoke and he obeyed, the net was full of fishes. तो यीशु जब कहने लगा उससे, तो सिमोन ने सुना और देखिए वो जाल जो है मछली से भर गया। Because Jesus only was the word in Genesis that he created the fishes and everything. क्योंकि यीशु ही वो शब्द था उत्पत्ति के समय में जिसके माध्यम से सारे मछलियां जो है उत्पन्न हुई। In 1 Kings 17:14, another example is there. A widow woman, she feeds Elijah when he is hungry. और उसके बाद में हम पहला राजा की पुस्तक अगर उसका देखेंगे 17 अध्याय को, 17 अध्याय का 14 पद को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे देखते हैं कि एक विधवा स्त्री जो है वो एक नबी को खिलाती है। So, the prophet Elijah comes to a widow woman and he says that he's hungry, he needs something to eat. और यह नबी एलिया नबी जो है एक विधवा औरत के पास में आता है और कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने दीजिए। She doesn't have anything, but she takes little flour and oil and she makes a cake and she feeds him. और उसके बाद में उसके पास तो कुछ नहीं है, मगर वो क्या करती है, वो आटे को लेती है और उससे कुछ रोटी बनाती है और उसे खिलाती है। Notice she obeys whatever the prophet says. देखिए जो कुछ वो नबी कहता है वो ऐसा ही करती है।
Then I will read this verse. It says, "Thus says the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sends rain upon the earth." पहला राजा 17 अध्याय का 14 पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मह ना बरसाए, तब तक ना तो उसे घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। So Elijah spoke the word, and at his word, even the empty vessels of oil was never lacking. It was always filled. तो एलिया नबी जब शब्द का इस्तेमाल किया तो हम देखते हैं कि जो घड़ा है वो कभी भी खाली नहीं दिखाई दिया, वो हमेशा भरा हुआ दिखाई दिया। So when there is no word or no God's word, things are empty. But when God speaks, then things are filled. तो परमेश्वर का वचन जब नहीं होता या कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होता तो बहुत सारे जगह में शून्य स्थान को पाते हैं, मगर जब परमेश्वर बात करता है या बात करने लगता है तो वो जगह भरने लगता है। So in Genesis, Jesus only was the word. So when he came on the earth, when he was born, he came to fill the void. और देखते हैं कि यीशु वो शब्द है और ये संसार फिर भी जो है खाली पड़ा हुआ था, और वो जब जन्म लिया इस संसार में तो हम देखते हैं कि एक खाली स्थान को वो भरने आया। Notice in John chapter 2 verse 4, you know the story and the event that at the wedding of Cana, there was a lack of wine. यूहन्ना की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 14 पद में कि कनान देश में जो है एक विवाह होता है और वहाँ पे देखते हैं कि दाखरस का कमी वहाँ पे पाया गया। And verse 4, Jesus says, "My time has not yet come." और यूहन्ना 2 अध्याय का 14 पद में लिखा है, यीशु कहता है कि मेरा समय आया नहीं है। Many people say why Jesus said this, and they take this and connect it to the cross. बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि यीशु ने ऐसे क्यों कहा, और इसी बात को लेके क्रूस के साथ में वे लोग कुछ समानता को लाते हैं। But one of the main things in this word is Jesus waited for all the wine to finish. मगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह थामे रहा जब तक सारे दाखरस खत्म नहीं हुआ। Maybe if Jesus would perform the miracle before, people would think that he did a mixture of the previous wine which was already there. अगर मान लीजिए यीशु अगर ये चमत्कार पहले कर देता, दाखरस खत्म होने का पहले, तो वहाँ के लोग जो है यह समझते कि शायद पहले दाखरस कुछ बच गया था, उसमें उसने फिर कुछ मिला दिया। But Jesus says, my hour has not yet come. मगर यीशु कहता है कि मेरा समय अब तक नहीं आया। Jesus is a word that comes to fill your void in your life. यीशु एक शब्द है जो आपके जीवन में खाली स्थान को भरने आता है। You may be void in certain places, but your void is not unemployed. आप कुछ जगह में शून्य जरूर होंगे, मगर वो शून्यता बेरोजगारी नहीं है। And God is coming to employ the void. और परमेश्वर आ रहा है कि उस शून्य स्थान को भरकर आपको एक रोजगार मनुष्य बनाए। Because wherever there is void and lacking, God comes to manifest himself in that area. क्योंकि जहाँ जहाँ कुछ कमी पाया जाता है या कुछ शून्य स्थान पाया जाता है, परमेश्वर अपने आप को उन सारे जगहों में प्रकट करता है। In the Bible, sin means missing the mark. बाइबल में पाप का मतलब यह है कि सीमा से चूक जाना। So when we miss something, then Jesus could come as a savior in this world. तो हम जब किसी चीज़ से चूक जाते हैं, तब यीशु मसीह जो है इस संसार में इसलिए आया ताकि हमें वो जगह से बचाए। Because if Jesus' name means savior, from what or who he is saving us? क्योंकि यीशु का नाम है मुक्ति देने वाला, तो वो क्या चीज़ से हमें मुक्ति दे रहा है? So when Jesus came, a man with a withered hand, Jesus came and healed his hand. तो जैसे मान लीजिए यीशु जब आया तो जिसका हाथ मुरझाया हुआ था, उसका हाथ जो है वो ठीक हो गया। The person who was blind, Jesus gave him eyes. जो मनुष्य अंधा था, यीशु ने उसे आँख दिया। Wherever you are lacking, God comes and uses it as a platform to manifest himself. जिस जगह में भी आप अपने आप को शून्य महसूस करते हैं, परमेश्वर अपना प्लेटफॉर्म वहाँ तैयार करता है और अपने आप को प्रकट करता है। That is why Jesus always prayed at the night when it was dark. इसलिए यीशु हर वक्त जो है रात के समय में ज़्यादा प्रार्थना किया। But as God speaks in the morning in Genesis 1, Jesus goes out in his ministry and speaks and heals the people. ठीक जैसे उत्पत्ति का पुस्तक में परमेश्वर बात करता है, सुबह होता है, उसी प्रकार से
यीशु मसीह जो है उजियाला में दिन के समय में जाके लोगों से प्रचार करता है। So this also gives us the importance of praying at night. तो इससे भी हम कुछ जानते हैं, इसका महत्व को जानते हैं कि हमें रात के समय कितना प्रार्थना करना चाहिए। So when it was dark, he prayed, but in the morning he spoke, and at his word, things were restored. तो रात के समय में यीशु प्रार्थना करते थे और दिन के उजाले में वो शब्द का इस्तेमाल करते थे और सारे चीज़ जो है, जो बिगड़ा हुआ चीज़ है, वो फिर से जो है हम देखते हैं वापस आ जाता था। That is why in the Bible, God uses small things or tiny things to show his power. तो बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों को माध्यम के रूप से इस्तेमाल करता है अपना सामर्थ्य को दिखाने के लिए। So in the Hebrew language, God's name begins with the smallest letter in the Hebrew language. और इब्रानी भाषा में परमेश्वर का नाम एक छोटा अक्षर से शुरुआत होता है। It is the smallest letter. ये सबसे छोटा अक्षर है। That is why when God fed the people, he only used 5 bread, 5 loaves and 2 fish. You know the story. और इस कहानी को हम जानते हैं, इसलिए परमेश्वर जब लोगों को खिलाए तो केवल 5 रोटी और 2 मछली वहाँ पे मौजूद था। When Jesus taught about faith, he just used a small mustard seed. और यीशु मसीह जब विश्वास का जो है पढ़ाई देते थे तो वहाँ पे एक सरसों के दाना का जो है उदाहरण दिए। When Jesus taught about giving, he showed them the widow's mite, the smallest coin. और यीशु जब वहाँ पे भेंट देने के विषय में जब सिखाए तो वो विधवा स्त्री का छोटा सा सिक्का का इस्तेमाल करते हुए लोगों को दिखाया। When Jesus taught about entering heaven, he called a small child and told us to be like a small child. जब यीशु स्वर्ग में प्रवेश करने के बात किए तो एक छोटे से बच्चे को पास में बुलाया और उसने कहा कि इस छोटे से बच्चे के समान हमें होना है। Because God is a God who uses small things to show how great he is. क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो छोटे छोटे चीज़ों को ले करके दिखाना चाहता है कि वो कितना महान है। We know God used Paul. हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल किया। Paul means small. पॉल का मतलब होता है छोटा, But Paul in Hebrew means to be extraordinary. मगर इब्रानी भाषा में पॉल का मतलब है कि अपने जो स्वभाव से कुछ अधिक जानकारी रखना या अधिक पेश होना। So God can take something small, you may think you are small, but he can show how big he is. तो परमेश्वर कोई एक छोटी सी बात को ले सकता है और वो प्रकट कर सकता है कि वो कितना महान है। That is why the word Israel in Hebrew begins with the smallest letter in the Hebrew language and it ends with the tallest letter in the Hebrew language. इसलिए इब्रानी भाषा में जो शब्द इज़राइल है वो छोटा से छोटा अक्षर से शुरू होता है और उसका अंत जो है काफ़ी बड़ा एक अक्षर से अंत होता है। Because God takes small things and he makes it big and he shows his power. क्योंकि परमेश्वर छोटे चीज़ों को लेता है और उसे बड़े बनाता है और वो अपना सामर्थ्य को दिखाता है। In the Bible there are 2 times. One is man's time and one is God's time. बाइबल में 2 समय होते हैं, एक मनुष्य का समय होता है, एक परमेश्वर का समय होता है। Our time is a chronological time. We go ahead of time. हमारा समय जो है वो एक ऐसा समय है जो हम समय के पहले जो है चलने शुरुआत करते हैं। For example, we have a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and so on. मान लीजिए हमारे पास जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार होता है। But God's time in the Bible is an appointed time when he makes major events to happen. मगर परमेश्वर का ऐसा समय है कि वो एक स्थानीय समय के अनुसार अपना काम को करता है। When we are in our time, we suffer and we have problems. हमारे समय में हम बहुत पीड़ा उठाते हैं और बहुत प्रॉब्लम का सामना करते हैं। When we enter into God's appointed time, then we see his miracle and power. मगर परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ समय के अनुसार में अगर हम चलते हैं और प्रवेश करते हैं उसमें तो उसके सामर्थ्य को हम देखते हैं। The woman with the issue of blood she was in her time for 12 years she was suffering. जो स्त्री को देखते हैं लहू बहने का जो बीमारी था वो 12 वर्ष से अपने समय पे वो जो है पीड़ा और दुख उठा रही थी। But there came an appointed time when Jesus came and she touched his garment and she was healed. मगर एक नियुक्त किया हुआ समय देखते हैं वहाँ पे आया जब यीशु आए और वो जब उसका वस्त्र को छुई तो चंगी हो गई। In the Bible, when God speaks something over your life, over a major event, that is his appointed time. जब परमेश्वर आपके जीवन में बात करता है कोई बड़ा एक कार्य होने के लिए तो वो उसका एक नियुक्त समय होता है। That is why God's time means a transfer in my environment. That is a full form of time.
और परमेश्वर का समय का मतलब यह होता है कि मेरे पर्यावरण में एक स्थानांतरण होना। So when God speaks over your life or something to you specifically, there is a transfer that comes in your situation. तो परमेश्वर जब खास तौर से आपके परिस्थिति में बात करता है तो आपके परिस्थिति में एक स्थानांतरण दिखाई देता है। So when we live in our time, we face problems and limitations. तो हम जब अपने समय के अनुसार जीते हैं तो हमारे जीवन में सीमाएं आते हैं और प्रॉब्लम्स आते हैं। But when we believe and receive His word in our situation, then there is a transfer in our environment. मगर उसके वचन को अगर हम लेके अपना लेते हैं तो हमारे पर्यावरण में एक स्थानांतरण दिखाई देता है। So I want to ask you this question: who do you think you are, or what you lack in your life? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को क्या मानते हैं या आपके जीवन में किस चीज़ की कमी पाया जाता है? Moses could not speak; he used to stammer. मूसा नबी बात नहीं कर पाते थे, वो लड़खड़ाते थे। But God, that's why, used his weakness and he spoke to Pharaoh, and he used him, and then people were sent out from Egypt. और उसके कमजोरी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और वही मूसा जो है फिरौन से बात करता है और लोग जो है बंदवाई से निकल गए। So what is your weakness? God will make it into a platform to show his greatness. तो आपका कमजोरी क्या है? परमेश्वर उसी कमजोरी को इस्तेमाल करके अपना सामर्थ्य को दिखाएगा। When there was a blind man, then Jesus said that the blind man did not sin nor his parents, but he was born this way so that God could manifest himself. देखिए हम देखते हैं एक अंधा व्यक्ति को और जब यीशु मसीह कहता है कि इसके माँ बाप पाप नहीं किए मगर ये अंधा इसलिए है ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य इसके जीवन में दिखाई दे। So what do you lack in your life? तो आपके जीवन में किस चीज की कमी पाया जाता है? Both the devil and God come to tell you your weakness. दोनों शैतान और परमेश्वर आते हैं आपको अपने कमजोरी के बारे में बोलने के लिए। The devil shows your weakness to demote you. शैतान आपका कमजोरी आपको दिखाता है आपको नीचे दिखाने के लिए। God comes to show your weakness to promote you. परमेश्वर आपको कमजोरी दिखाता है आपको ऊपर उठाने के लिए। So the devil uses your weakness to inbuild fear inside you. शैतान आपको कमजोरी दिखाता है आपके भीतर में डर पैदा करने के लिए। But God shows your weakness so that His grace now can work through you. मगर परमेश्वर आपको अपना कमजोरी दिखाता है ताकि उसका अनुग्रह आपके जीवन में काम करे। So don't think that you are small. तो यह ना सोचे कि आप छोटे हैं। Because when God used Joseph, he was one of the youngest in the family. क्योंकि परमेश्वर ने जब यूसुफ का इस्तेमाल किया तो अपना परिवार में सबसे छोटा था। When God used Gideon, he was the youngest in the family. जब परमेश्वर ने गिदयोन का इस्तेमाल किया तो वो भी अपने परिवार में सबसे छोटा था। When God used David and called him, he was the youngest in the family. जब परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल किया और उसे बुलाया तो वो भी अपना परिवार में सबसे छोटा था। Even when God sent Jesus, he was born as a baby in a small manger. और परमेश्वर ने जब यीशु को भेजा तब भी हम देखते हैं कि वो एक बालक के रूप में एक गौशाला में जन्म लिया। So if you think you are very small, then God is going to show His greatness in your void. तो आप अगर सोचते हैं कि आप बहुत छोटे हैं तो परमेश्वर उस छोटे से स्थान को या उस शून्य स्थान को भर देगा। So don't get worried when people try to reduce you. तो आप चिंता ना करें जब लोग आपको नीचे दिखाने चाहते हैं। Because then God will start using you. क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। When people reduce you, God will use you. जब लोग आपको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तब परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। When you are stuck in a cage, God will make it His stage. जब आप एक पिंजड़े में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर उसी पिंजड़ा को अपना स्टेज बना देगा। Because God's entry is when you are empty. क्योंकि परमेश्वर तब प्रवेश करता है जब आप खाली हो जाते हैं। And when God employed the void, then God enjoyed and said it is good. क्योंकि परमेश्वर ने जब उस खाली स्थान को रोजगार स्थान में स्थानांतरण किया तो उसने कहा कि यह अच्छा है। So maybe there is something in your life that you feel it is void, it is empty. हो सकता है आपके जीवन में इसलिए आपको ऐसा लगता हो कि कोई स्थान में आप खाली पड़े हुए हैं। But that emptiness is when God will show His entry. मगर वही जगह में जहां आप अपने आप को खाली महसूस करते हैं परमेश्वर वहां प्रवेश करेगा। So let me tell you again, your void is not unemployed. आपका शून्य स्थान बेरोजगारी नहीं है। Wherever you think you are lacking, you are missing something, God will come in that place and He'll use it as a platform to show His power in that area.
जहाँ पे अपने आप को आप खाली महसूस करते हैं या शून्य महसूस करते हैं, परमेश्वर उस स्थान में प्रवेश करेगा और अपना सामर्थ को दिखाएगा। So ask yourself, what do you lack or what is missing in your life? आप अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि आपके जीवन में क्या खाली स्थान पड़ा हुआ है या क्या शून्यता पड़ा हुआ है। So God will be attracted when you need Him. तो परमेश्वर तब खींचा चले आएंगे जब आप चाहते हैं कि प्रभु मैं आपको चाहता हूँ। So we need to remember these things, and this is the main thing to remember, that your void is not unemployed. और ये सारे बातों को हमें ध्यान रखना है, मगर खास तौर से यह बात जरूर ध्यान रखिए कि आपका शून्य स्थान बेरोजगारी नहीं है। God is coming to employ your void, and He's coming to show His power. परमेश्वर आ रहा है कि आप के खाली स्थान को स्थानांतरण करके अपना सामर्थ्य को दिखाए। And I really believe those of you who are watching this word is for you, and someone must be thinking that there is some void or lacking in your life. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आशीष पाएंगे, और यहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो देख रहा है, ये सोच रहा है कि मेरे जीवन में कोई ना कोई स्थान में मैं खाली पड़ा हूँ। Wherever that place is or whatever that place is, God is going to show up in that place. चाहे वो जैसे भी जगह हो, कहाँ भी हो, परमेश्वर उस स्थान को भरने वाला है। May God bless all of you who are watching with us. परमेश्वर आप सबको आशीष करे जो इस समय हमें देख रहे हैं। May God bless all of you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shall we look to God and pray? हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, और हम विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा तूने हमें बहुत सारे बातें सिखाए। हम प्रार्थना करते हैं जिन स्थानों को हम खाली पड़े हुए देखते आए और हमारा आशा जो है वो कमजोर हो चुका, ताकि प्रभु कुछ नहीं होगा, मगर हमें आज विश्वास हो गया कि उसी खाली स्थान को, उसी छोटे से छोटे स्थान को आप परिवर्तन करने वाले हैं, स्थानांतरण करने वाले हैं, और वहां पे आपका सामर्थ नजर आएगा और लोग भी जो है आपके सामर्थ को देखेंगे। और हमें विश्वास है प्रभु कि आज के बाद हमारे जीवन में प्रभु हर एक खाली स्थान को, हर एक शून्य स्थान को आप भरने वाले हैं, और हमारा जीवन जो है आशीष से उभर जाएगा और लोग उसे पाएंगे और प्रभु तुझे जानेंगे और तेरी महिमा करेंगे। सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं हमारे खुदा, सारे आशीष और महिमा प्रभु तेरा ही बना रहे हमेशा। प्रार्थना करते हैं जो लोग देख रहे हैं उन्हें इस समय में भर दे और हमें भी भर प्रभु, ताकि इसी प्रकार से हम एकता में बने रहें। हम ये सारा दुआ यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। God bless you. Have a nice day. प्रभु आप सबको आशीष करे। आज आपका दिन शुभ हो।